Thank you, all the distinguished people who are part of the function today. And I would first like to acknowledge my the presence of respected Guruji Shri Nayan Padam Sagarji Maharaj, and I consider it as a privilege for me that we have his distinguished and esteemed presence in this function. Uh, I'm happy that people from both the campuses are here, the Sonipat and the Surat campus, and all other connected educational institutions. I had the privilege to visit the Surat campus once, and it's a huge campus blessed by Bhagwan Mahavir. I am not a Jain by birth, but I am a very strong follower of the principles of Bhagwan Mahavir, like all. And you all will be happy to know that India was the first country in the whole world who have not only heard this news, but where we acted on the news within less than 24 hours. My own Ministry of Health and Family Welfare, we had organized a meeting within the next 24 hours on 8th of January with all related experts, public health specialists, clinicians, epidemiologists, WHO people. And this is what we normally do whenever there is a disease outbreak of any particular disease anywhere in the country. But we reacted to this news and started planning about how we handle this virus in India in case it arrives in India, because of with the past experience of so many diseases. Analyze corona. It will always be remembered as something which has caused so much of havoc for the society and for the globe. But it may also be remembered for the new reforms that it has been able to trigger for the society. This particular webinar should also prove to be something historic in times to come. Whatever you discuss here, we must also ensure that those things are not confined to official discussions or being part of the minutes of the webinar proceedings, but there should be a serious discussion about ensuring that we start introducing those reforms in the society. It may take some time for the whole country to follow, but in our limited way, whatever best we can implement, whatever best we can introduce, whatever changes we can add in the system, they will all be welcomed by the society. And I'm happy that we have the presence of Shri Nayan Padam Sagarji, who is a great luminary. He is a great social reformer. His teachings and preachings, and I'm sure he will also uh, give and enlighten the country and the society with a new vision for the post-corona in a much better way, something which we had probably forgotten over the years. Reverse our respect for environment, our respect for wildlife, our respect for forests, everything. All
these are interrelated issues. A great future for a better future. New India of the dreams of our Prime Minister Modi ji, trying to deliver a new India by 2022. All have to work together once again. Make sure that you are all taking adequate precautions, stay safe, ensuring the safety of others also. I once again thank all of you for giving me this privilege of being with you. And I look forward to many more opportunities of interacting with the students of Bhagwan Mahavir University in future also. Thank you so much. बहुत बहुत आनंद और बहुत खुशी है कि आज भगवान महावीर यूनिवर्सिटी ने एक अद्भुत वेबिनार का आयोजन किया है और उसके अंदर हम सभी के प्रिय और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, के अग्रवाल जी और काफी प्रभावशाली पुण्यशाली इस वेबिनार के अंदर उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे ये खुशी है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत प्यार से अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वास्थ्य वर्धन जी कहते थे और आज इसलिए खुशी है और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिल से आशीर्वाद देता हूं कि वो WHO के चेयरमैन बने हैं। 700 से 800 करोड़ विश्व के लोगों के आरोग्य का दायित्व जिनके हाथों में अब आ रहा है और करोड़ों अरबों पशुओं पंछियों की रक्षा करने का, पवित्र सेवा करने का पुण्य डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिल रहा है, उसकी मुझे अपार खुशी है और मेरा उनको तहे दिल से आशीर्वाद है। सच कहता हूं, बहुत आनंद होता है। भारत बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। पिछले काफी वर्षों की गुलामियों की जंजीरों से इस देश को अब मुक्त मन से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और उसमें भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भारत की अस्मिता और भारत की संस्कृति तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। वर्तमान के अंदर कोरोना का भयंकर विनाश, उस विनाश के पीछे का कारण भारतीय संस्कृति को नहीं समझना, अहिंसा, प्रेम, करुणा को नहीं जानना और वुहान से जो भयंकर बीमारी शुरू हुई, आज पूरा विश्व उससे टहला रहा है। पूरे विश्व की तबाही का मूल कारण वो वेट मार्केट, जहां 160 से ज्यादा जिंदे पशुओं को, पंछियों को खाया जाता है, मारा जाता है, बर्बरता पूर्वक उनके साथ अत्याचार किया जाता है और प्रकृति आशीर्वाद नहीं अभिशाप बनी और उसका ये कारण वुहान के अंदर इतना भयंकर कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। भले रिसर्च कुछ भी कहे, आज के षड्यंत्रों को हमें पहचानना पड़ेगा। विश्व के अंदर तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं और ये षड्यंत्रों के तहत आज इतनी भयंकर बीमारियां फैल रही है। WHO की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट पर इतने लोग बैठे हैं, उनकी जवाबदारियां बहुत ज्यादा है। आज के षड्यंत्रों को पहचानना पड़ेगा। लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग इस बीमारी से तरफ रहे हैं। पूरा विश्व स्तब्ध है। उसके पीछे के षड्यंत्रों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और मैं आज के वेबिनार के अंदर यह कहना चाहूंगा, भारत सरकार को धन्यवाद है। भारत का प्रकृति प्रेम अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जहां पर भी जाते हैं, कहीं पर मांसाहार को स्थान नहीं आने देते। भोजन समारंभ के अंदर भी नॉनवेज अलाउड नहीं है और यदि विश्व को बचना है तो आवश्यकता है मांसाहार का परित्याग करे, क्योंकि यह बीमारी का कारण मांसाहार है। जिंदे पशुओं को खाना, जिंदे पंछियों को खाना, चाहे चमगादड़ हो, सर्प हो, कॉकरोच हो, याजगर हो, इन पशुओं को खा करके तरह तरह की बीमारियां इस विश्व के अंदर फैली है। चाहे सार्क हो, चाहे इबोला हो, चाहे मैड काउ डिजीज हो, चाहे स्पेनिश फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, सारी बीमारियों का कारण क्या? यही मांसाहार। विश्व को यदि सर्वनाश की ओर आगे ले जाना है तो मांसाहार आगे बढ़ाए, वरना इसके ऊपर प्रतिबंध बहुत जरूरी है। मोदी जी इस विश्व को योग दिवस की अद्भुत गिफ्ट देते हैं। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म, ये 3 सूत्र पूरे विश्व को बचा सकते हैं। योग
व्यक्ति के शरीर की शुद्धि करता है, आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि करता है, और अध्यात्म आत्मा की विशुद्धि का मूल आधार है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इंसान है, कोई पशु है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। कारण क्या? व्यक्ति के अपने कर्म, और सबसे ज्यादा बुरे कर्म, सबसे ज्यादा बैड लक, सबसे ज्यादा पाप ये मांसाहार से होता है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने भारत सरकार को प्रपोजल दी कि कोरोना का वैक्सीन, उसका टेस्टिंग मुझे भारत के अंदर गरीब लोगों के ऊपर करना है। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे प्रिय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। इन्होंने मना कर दिया, भारत का एक भी नागरिक एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता। भारत भारत है और यहां का नागरिक वो प्रयोगशाला के रूप में खरगोश और बंदर बन करके इन वैक्सीन वालों की मजा का आधार नहीं बन सकता। अद्भुत डिसीजन भारत सरकार ने लिया और मुझे प्राउड फील होता है। मानवता का लेटेस्ट एग्जाम्पल यदि देखना है तो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी और पूरा परिवार हम देख सकते हैं। मैं अनेक विद्वानों से, अनेक डॉक्टर, अनेक साइंटिस्टों से बहुत गंभीरता से चिंतन करता हूं। आज भी काफी बड़े बड़े साइंटिस्टों से मेरा चिंतन हुआ। मैं उन साइंटिस्टों का यहां पर आपको उल्लेख करना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट माइकल ग्रेगर, उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक अभी लिखी है, हाउ टू सर्वाइव इन द पेंडेमिक। महामारियों में जीवित कैसे रहा जाए, यह किताब अवश्य पढ़िएगा। ऐसी अद्भुत किताबें, विश्व को जीवन जीना पता चलेगा और यह महामारियां और बढ़ेगी। यदि मानव सभ्यता ने अपना आदर्श प्रस्तुत नहीं किया तो ये महामारियां सर्वनाश करेगी। और ये साइंटिस्ट ने ये आगे लिख दिया है, एपोकाइलिक वायरस जो मुर्गियों के अंदर, चिकन के अंदर भरा पड़ा है, और यदि ये म्यूटेशन हो गया तो आधा विश्व तबाह हो जाएगा, आधा विश्व तबाह हो जाएगा। साथ में डॉक्टर जियोन ल्यू जो यूनो के चीफ साइंटिस्ट है, एनवायरमेंट प्रोग्राम के चीफ है, और वो यूनो के साइंटिस्ट जियोन ल्यू कहते हैं यदि विश्व ने शाकाहार को नहीं अपनाया, अभी की लेटेस्ट बात है, आज वो पोस्ट पर मौजूद है, और वो साइंटिस्ट कहते हैं यदि विश्व ने आहार पद्धति में परिवर्तन नहीं किया, प्रकृति का दोहन किया, मांसाहार को आगे बढ़ाया, तो ऐसे कई कोरोना वायरस आएंगे और आने वाले 200 साल के अंदर मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। यूएन के अंदर रहने वाले और वो एनवायरमेंट प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट हमें ये कहते हैं। उसके आगे अमेरिका के रोम फाउंडेशन 33 देशों के अंदर 2015 से 2020 तक उन्होंने रिसर्च किया। उसके अंदर मेन डॉक्टर इजराइल के डॉक्टर अमीश परवर और भारत के अंदर लखनऊ के हमारे डॉक्टर संजय गांधी पीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर उदय गोसाल, उन्होंने इसके अंदर रिसर्च के अंदर जबरदस्त मेहनत की इतने साल, और उन्होंने कहा विभिन्न बीमारियों के अंदर बचने का उपाय, सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण उपाय है वो शाकाहार है। भारत के अंदर आज भी लोग 50% स्टूल के अंदर ये कोरोना की बीमारी निकाल देते, कारण भारत के अंदर लोग शाकाहारी है, और थोड़े लोग भी मांसाहार करते हैं, वो भी वीक में, महीने में 1 बार या 2 बार। इसलिए भारत के अंदर मृत्यु दर कोरोना का कम है। उसका मूल कारण ये शाकाहार है, ये विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 1996 के अंदर अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारे अहिंसा के ब्रांड एम्बेसडर है। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हमारे यहां पर इतने कोरोना के पेशेंट है, 23 करोड़ की आबादी का हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए हम किसी को भी नॉनवेज नहीं देते, क्योंकि इससे बीमारी संक्रमित होने की संभावना सर्वाधिक है, और लोगों को कोरोना की बीमारी के अंदर हम लोग झोंकना नहीं चाहते। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना जबरदस्त ये वेबिनार, और इसके अंदर एजुकेशन के विषय पे, नॉट एजुकेशन बट कैरेक्टर। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे मुझे वो ज्ञान चाहिए जो चारित्र का निर्माण करे, व्यक्ति को समष्टि बनाए, और आज के विश्व के अंदर आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, अध्यात्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों कोई पापी है, कोई क्यों अमीर है, क्यों कोई गरीब है, कारण क्या? कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कारण क्या? क्यों कोई इंसान है, क्यों कोई पशु है, कारण क्या? इसका कारण भगवान नहीं,
व्यक्ति के अपने कर्म और अपना पुरुषार्थ है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि लोग सही पुरुषार्थ करें। विश्व को जल्दी से जल्दी पोल्ट्री फार्म बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर आधा विश्व तबाह हो जाएगा। विश्व को बहुत जल्दी ये स्लॉटर हाउस बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसी कोरोना, इबोला, मैड काउ डिजीज या स्पेनिश फ्लू ऐसी कई बीमारियां फैलेगी और करोड़ों करोड़ों लोग मौत के मुंह में के चले अंदर चले जाएंगे। उस विश्व को हमें मिलकर के बचाना है। खुशनुमा विश्व हम सभी को मिलकर के बनाना है। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, भारत सरकार को एक दिल से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत धार्मिक है, बहुत पवित्र है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शुरू में ही कहा, गुरुदेव भले ही मैं जन्म से जैन नहीं हूं, परंतु मैं कर्म से जैन हूं। भगवान महावीर के सिद्धांतों को मैं दिल से मानता हूं। हमारी जब भी वार्तालाप होता है, मिलना होता है, इन विषयों पे गंभीर चिंतन होता है। बहुत पवित्र व्यक्ति आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने हैं। मुझे इसकी बहुत खुशी और अपार आनंद है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया समय पर, इसलिए बीमारी से देश बचा और देश की प्रजा को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस प्रकार से मोदी जी के शब्दों को स्वीकार करके, उनके ऊपर विश्वास करके लॉकडाउन का अमल किया। इसलिए देश आज बैलेंस में है, सुरक्षित है। बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाएगा ये देश और ये विश्व। बहुत जल्दी खुशहाल विश्व हम लोग देखेंगे। बहुत जल्दी वही प्रेम, वही आत्मीयता, वही सभ्यता, वही संपत्ति, वही संस्कृति और वही अध्यात्म की भूमिका में हम सभी बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। शिक्षा के अंदर संस्कार, शिक्षा के अंदर भारतीयता, हमारे लोगों को तो शिक्षा का भारतीयकरण करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन की बातें बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर फिल्टर लगाना भी बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में आने वाला मोबाइल जिसके अंदर फिल्टर नहीं है, जिसके अंदर गलत चीजें भी आ सकती है और उससे बाल मानस, ये युवान गलत रास्ते पे भटक सकते हैं, उसके ऊपर भी गंभीर चिंतन की जरूरत है। मानता हूं इसकी भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसके प्लस और माइनस की समीक्षा करके हमारे युवाओं को, हमारे बालकों को प्रोटेक्ट करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत खुशी, बहुत आनंद है। भारत सरकार जल्दी एक विभाग का शुभारंभ करे। भोजन मिनिस्ट्री, क्या खाना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, मांसाहार तो करना नहीं चाहिए। महाभारत के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यो दद्यात् कांचनम मेरु कृष्णाम चैव वसुंधराम एकस्य जीवितम दद्यात् न चतुल्यम युधिष्ठिरा। हे युधिष्ठिर, कोई सारी पृथ्वी का मालिक हो और सारी पृथ्वी का दान दे दे, करोड़ों करोड़ों टन सोना डोनेशन में दे दे, फिर भी हे युधिष्ठिर, एक जीव को बचाने वाला उससे अधिक पुण्य प्राप्त करता है। बचाना ये भारत की संस्कृति है, मारना ये भारत की संस्कृति नहीं है। और इसलिए चाइना गवर्नमेंट ने अभी बोल्ड डिसीजन लिया है। 160 जिंदे पशुओं को खाने वाला चाइना, उसने अभी डिसीजन लिया है और चाइना गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी कर दिया है। केवल 5 पशुओं का मांस चाइना में अवेलेबल रहेगा और धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। सांघाई टाइम्स पर आप पढ़ लीजिए, सांघाई टाइम्स के अंदर स्पष्ट लिखा है आज चाइना के अंदर हजारों लाखों लोग नॉनवेज छोड़ चुके हैं। यूरोप के अंदर लाखों लाखों लोग नॉनवेज छोड़ चुके हैं। बचना है तो नॉनवेज छोड़ना है, किसी पर एहसान नहीं करना है। और भारत सरकार एक नया मंत्रालय शुरू करे, नीति आयोग उस विषय पर फोकस करे। लोगों को क्या खाना, मेजोरिटी बीमारी ये भोजन की गलत प्रक्रियाओं से आती है। तो आज अद्भुत एजुकेशन का भगवान महावीर यूनिवर्सिटी सूरत के माध्यम से आयोजित ये वेबिनार के अंदर पूरे आयोजकों को, हमारे सुरेश जी, हमारे सबके लाडले, आरएसएस के अंदर जबरदस्त सेवा करने वाले और आज तो जबरदस्त सेवा के अंदर आगे बढ़े हैं, पूरा परिवार जिस तरह से सूरत के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है, हमें गर्व और गौरव होता है। मैं सबको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, के अग्रवाल जी, सारे पॉलिटिकल हमारे मेयर और एमपीस वगैरह, सारे सूरत के गणमान्य ढोलकिया जी वगैरह, सारे उद्योगपति, सारे पुण्यशालियों को तहे दिल से आशीर्वाद है। विश्व को बचाना है, हम सभी को शाकाहार का ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा।
भोजन का सही तरीका दुनिया को सीखना पड़ेगा। और ये कोरोना से तो क्या, दुनिया की कोई बीमारी से हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। उसकी पवित्र सभ्यता को हमें आगे बढ़ाने का सफल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चाइना गवर्नमेंट ये कहती है, वहां पर कन्फ्यूशियज्म जो बहुत पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से भी पुराना, जैन परंपराओं को आदर्श के रूप में स्वीकार करने वाला वो धर्म और बौद्ध परंपरा का महायान धर्म, उसके अंदर 95% से ज्यादा लोग शाकाहारी है। और वहां का रिसर्च ये कहता है कि वहां पर जो मृत्यु दर हुआ वुहान के अंदर, उसमें हजारों लाखों लोग मर गए, लेकिन उसमें जो ये शाकाहारी लोग थे उनकी मृत्यु दर नहींवत थी। नहीं जैसा जब चाइना ये चीज बताता है दुनिया को, तो हम सभी को तो समझना कितना आसान है। अब चाइना को भारत की संस्कृति के बारे में अब समझ में आ रहा है, शाकाहार की महिमा क्या है वो समझ में आ रहा है। और धर्म और अध्यात्म के लिए, सद्गति के लिए, पवित्र विचारों के लिए, सेवा और परोपकार के लिए शाकाहार बहुत जरूरी है। हम कोरोना से बचेंगे अवश्य, लेकिन मांसाहार का परित्याग करें, शराब सिगरेट आदि व्यसनों का परित्याग करें, बासी भोजन का परित्याग करें, रात्रि को भोजन न करें। देश के अंदर एक सात्विक हीरो है अक्षय कुमार। जब अभी लास्ट ईयर हम जुहू के अंदर थे, मिलना होता था, अक्षय कुमार ने मुझे स्वयं कहा, गुरुदेव मैं रात को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करता। रात को भोजन न करे, उबला हुआ पानी पिए, सदाचारी जीवन जिए और परिवार के साथ बैठ करके पवित्र प्रार्थना करे। मेरा आज बहुत मंगल आशीर्वाद है संपूर्ण भारत सरकार को, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, अग्रवाल जी को और पूरी यूनिवर्सिटी के परिवार को और हमारे लाडले सुरेश जी जैन को। आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब पवित्र कार्य हो और भारत विश्व गुरु बनकर के विश्व के कल्याण में निमित्त बने। यही आज के दिन हमारा आप सभी को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद।